Can I just say, y'all have hit it out of the park. Fantastic. Congratulations. We get to see this so much. I love to see like the enthusiasm. These people probably do this 3 times a day, so the enthusiasm is a little muted, but here it wasn't. So congratulations, sir. I have to ask you, Kanika, first. How did you think of this? What were you doing thinking of this kind of a crazy? It's fantastic, and that's the best part of it. And you managed to still make a whole film out of it, writing wise. Can you just tell me, before I ask the obvious candidates, how did you think of this? I just got bored being very sane, so I thought I'll write an insane story. So that's how it came about. Short and sweet. That's it? Wow, that was really short. All right, so congratulations, Director Saab. Bollywood mein entry ke liye congratulations. A lot of directors from the South are now coming across, making big names for themselves. I can finally think that India has now become a unified film industry, at least on the face of it. Whether it actually has, we'll find out in a bit. But now that you see the creation up in front of you, what do you feel like? Are you happy? I'm very happy with what we've done and the journey so far. Very excited to show the film to the audience. Well, half the audience already seen it. But yeah, they've seen the trailer at least. And there's a gentleman right there, Shailesh Singh, who along with, we got a missing, spot in between because that lady is in Switzerland, Ekta Kapoor. We have to give a round of applause for her as well, who put this all together. And when I saw her tweet about the trailer last night, she said, "Love it, fantastic. I'm going to see it tomorrow." I was very excited. That is, we're definitely going to see it tomorrow. So, Shailesh, you've had a brilliant run. I mean, you had Jabariya Jori up, and now you got this as well. How can you stay so calm all the time? There's a lot of money at stake here. You don't feel like ever stressed. When you have so much on stake, you need to be calm. This is your new mantra. This is like, you're a yoga person. Are you a yoga person at all? Not at all. Not at all. Tennis person. You're a tennis person. But now we have to come to you. This is fantastic. You every time do different stuff and you'll bring it out there. You've got the producers that are backing you up on this. You've got the director with you. But I have to say, the gumption that you have, and you're able to just make your own path and you don't worry about anything. And that's why, you become a force on your own only. This is so fantastic to see. No, Salil, for this, I would like to give all the credit to Salesh ji because for 2 years, he was telling me, there is a script for you and this writer has written you in mind. So would you please, but I was not very keen on thrillers. And he would tell me, give it a chance and all of that. And I'm like, I Actually, don't we want. conned her. Yeah, so I asked her to read one of the script to just see how she writes. So I gave the script to read her. That's how I managed to get her to read the script. And when I heard it, I was completely blown away because it is so much more than just a thriller. Thriller is probably just one layer of it, but this film has so much to offer. And when I read it, and I felt so stupid that I had such a prejudice for a thriller. I always felt that thriller is a technician's medium, it's a director's medium, and actors have not, because you have to be very ambiguous in a thriller. Actors have really no arc because you've got to be playing very in a very sort of middle ground. That's why I wasn't very keen. I was so wrong, and I'm just so happy that I finally did it. And Kanika, it's an honor that she's written a role thinking of me in mind. I mean, I don't know if it is actually an honor or something to It's working for us. We're very happy. मतलब एक मेंटल है उसके बारे में एक you know judgmental होके एक film लिखते हैं. No, it was such a beautiful, happy moment for us when, Kangana, usually actors take time to make up their mind and all that, but Kangana was so instinctive and so sure. And I think the first half itself, Yeah. we knew that, she's doing it. She didn't like take even a moment. So, she knows what she wants. Yeah, And we are we've so seen a glad. lot of that. You do know exactly what you want, and it's fantastic. You haven't even the one that didn't work at the box office, which you were, a producer also of. I was in love with Simran as well. I found that fantastic as well. I haven't seen you put a foot wrong in a long time, and I think this is Yeah, kudos to you. Mr. Raju Hirani also told me the other day that he really loved the film, and he was also surprised that it didn't do well. He saw it in a aircraft. So I don't think it was a film which was, obviously it was not supposed to do 100 crore, but it is Yeah, definitely you not become a a bad victim film. of your own numbers with that the Tannu Veds Mannu numbers and all. You become a victim of that. I think that's a good thing. All right, so like I said, lots of lady power on stage. I'm going to open out to the audience. Please go ahead. Anybody want to ask? Oh, right here. Okay.
कि आपके बारे में कहा गया है, अरे कंगना वो पगली है, ऐसी है, कई आपके जवाब या जो भी विवादित बयान रहे हैं उसको लेकर, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं कि थोड़ा-सा पहले लगा यार ये फ़िल्म मुझे ऑफ़र की जा रही है ऐसे? नहीं, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में काफ़ी एक फ़ेज़ आया था जिसमें मुझे ये कह कह के काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है, ये मेडिकेशन पे है, तभी ऐसे क्लेम कर रही है। एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था कि सो व्हाट, जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ। अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की। लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया, तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है, वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से, कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी है। क्योंकि अगर वो फ़ेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता, 2016-17 का था जो, उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी, तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इश्यू है कि लाइक एक लड़की को सब पगली-पगली बुलाते रहते हैं, और उसकी और वो भी थोड़ा-सा ऑफ है, थोड़ा ऑफ बीट है। तो ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फ़ेज़ आया, उसके करके मैंने बहुत रिलेट किया इस फ़िल्म से। आई थिंक सो मुझे एक्चुअली में ना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलिएशन लगती है। आई एम ओके अगर मेरे बारे में लोग अ, या अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं, मेंटल सोचते हैं, वोला में सोचते हैं, या गैंगस्टर की मोल समझते हैं, या तन्नू समझते हैं, दत्तो समझते हैं। सो फॉर मी इट इज़ नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नॉर अ ह्यूमिलिएशन। एक और I would also like to add कि कहानी का टाइटल बाद में आया, कहानी पहले आई, और वो कहानी बहुत कम एक्टर्स पुल ऑफ कर पाते, सो आई मीन दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट Yeah, I कंगना don't वानी think Kanika ever thought of her character as a mental. She the When she offered the film to me, the film was called Bobby. So I don't think in her mind she has ever been harsh to her character. So it was actually a very pleasant take on somebody who's so prejudiced in the society. One sec, we'll just when we said raw and uncensored, we really meant it. This is going to be one of those really raw and uncensored. यार पीछे दे देते हैं, बहुत सारे सवाल करेंगे, है ना? मेरा सवाल आपसे है, कोलमैन ने अपनी जो बुक है कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर, उसमें लिखा है कि मेंटल इलनेस कोई खराब चीज नहीं है, छुपाने की चीज नहीं है। यही बात दीपिका पादुकोण ने मंच पे आकर कहा कि जब वो स्ट्रेस में थी, और उन्होंने कहा कि ये चीज, इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, लोग जो साइकेट्रिस्ट है उनके पास जाने से घबराते हैं। आप इसे किस मायने में लेती हैं, और ये फिल्म उन लोगों के लिए कितनी महती होगी? Uh, देखिए, ये फ़िल्म जो है, ये डेफ़िनेटली इट इज़ अगर आप सोचें कि मेंटल इलनेस के अराउंड ही स्ट्रक्चर्ड है, या इसके अंत में एक आके आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, एक सुझाव मिलता है, ये वैसी फ़िल्म नहीं है बिल्कुल भी। ये एक फ़िल्म है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट, जैसे हम मुझे ये जो रेवोल्यूशनरी इस लेवल पे लगा कि हमने हमेशा देखा है एक मेनस्ट्रीम हीरोइन जो होती है, वो चर्पी बहुत ज़्यादा होती है, खुश बहुत होती है हमेशा। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसकी, वो कॉलेज में भी मोस्ट पॉपुलर होती है, फिर जब उसकी शादी होनी होती है, तब उसको सारे लड़के उसी से शादी करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब वो जॉब में जाती है, फिर बॉस को उसी से प्यार होता है। सो ऐसे तो हमने देखा है आज तक, पर हमने ऐसा नहीं देखी कोई जो लड़की है जिसको अपने भी इश्यूज़ हैं, उसके कंडीशंस हैं, उसको जो मेडिकेशन पे है वो कंडीशन है, बट तो इस तरह की जो एक कैरेक्टर है, मेन स्ट्रीम हीरोइन है, जो कि एक मेंटल इलनेस से डील कर रही है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है, और ये उसकी कोई सॉब स्टोरी नहीं है, वो खुद को कत्ल नहीं कर देती है लास्ट में। अक्सर इन कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि वो खुद को मार डालते हैं तो आसपास के लोगों को मार डालते हैं। सो एक तरह से डार्क स्टोरीज में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो आई लाइक जो कैसे कनिका के कैरेक्टर जो है कैजुअली वेयर्स इट ऑन देयर स्लीव, जैसे ये बॉबी भी है, खुद का भी मज़ाक उड़ाती है और उसकी सिचुएशन का भी मज़ाक उड़ाती है। सो अब है जो है वो है। सो जो मेन स्ट्रीम हीरोइन का, जैसे हमने तन्नू के साथ में भी एक लड़की जो लड़के घुमाना जानती है, तो एक रेवोल्यूशन आया था, और वो डेफ़िनेटली वैम्प नहीं है। सो वो एक तन्नू से पहली बार आया था। हिंदी फ़िल्म की हीरोइन जो है, वो लड़के घुमा रही है और अच्छे से घुमा रही है, एंड शी इज़ नॉट अ वैम्प। सो उस तरह से एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है जो कि she is suffering from mental illness, but वो शी इज नॉट हैंगिंग हर सेल्फ।
and she's not sitting in a corner and sobbing about it. She's doing her business, she's doing her job, she's trying to see the silver lining. ये सबसे बेहतरीन बात है. Hi, Kangna. Hello. Oh, yeah, no, right. Sohail here. Yeah, आगे. Congratulations to you and the entire team. Uh, हम टाइटल की बात करते हैं. पहले मेंटल है क्या था, अभी जजमेंटल हो गया. You are a fighter, but then you really accepted this title very easily. Are you really very satisfied with this thing? Actually, क्योंकि हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब खराब होते हैं. मेंटल है क्या was nothing like very offensive side of thing. पर अभी जब जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है. तो तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, साँस भी लेते हैं ना, तो तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है. तो वो उस सबको ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है. उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं. तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे. और ऐसा कहा जा रहा है, जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है. पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड. मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है. और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया. और जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है. सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस. बट वी ट्रूली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिंसियरिटी है, और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है, वो भी उन्हीं ने वहाँ पे उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा, फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है, हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर. तो इतना जितने भारी दिल से उन्होंने कहा, वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया. सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आवर इंटेंशंस. एंड जिस इशू को लेके, जिन लोगों को लेके बनाई गई है, तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. Hello, can we also Kangana ji. feel One sec, आपके so जवाब से we'll- one अच्छा, ठीक. इसी से कंटिन्यूशन है. आपके जवाब से ही पता चला कि लाइफ में थोड़ा यू हैव स्टार्टेड थोड़ा कूल डाउन होना भी जरूरी है. आई मीन टू से हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा, जैसे अपनी टाइटल को लेकर थोड़ा आपने सोचा कि चलो रास्ता बना लो. तो हैव यू थोड़ा आपका जो थॉट प्रोसेस हाँ, मेरी मम्मी को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 30 के बाद ये थोड़ा काम डाउन होती जाएगी, होती जाएगी. फिर Hello. 30 मेरा हो गया है, अब धीरे-धीरे इसके अंदर की आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी. तो वो हो रहा है, आई कैन सी. हेलो कंगना जी, मेरा सवाल आपसे है कि लाइक ये जो पिक्चर का ट्रेलर देखा उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना पागल बन के हमको पागल बना रहे. तो ये बोल सकते हैं कि आप दोनों सबसे ज्यादा स्मार्ट है और येड़ा बन के पेड़ा खा रहे ये तो आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी. तो मतलब जजमेंट मेरा सही नहीं कर रहा है, जजमेंटल क्या वाला. पता आप देखें किसका जजमेंट सही है. और असल ज़िंदगी में भी बोले कि आपने बताया कि 16-17 में लोग आपको पगली कहते थे, लेकिन आपने उसमें भी सबका बैंड बजाया हुआ है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? आई थिंक मुझे जितना लोगों से प्यार मिलता है, जितनी सराहना मिलती है, जितना एक्सेप्टेंस मिलती है, इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने, ऑनेस्टली. जितना मुझे लोगों से प्यार मिलता है, इट एम्पावर्स मी. अगर मुझे लोग प्यार ना करें, मेरी मेरी काम को ना सराहें, मेरी फिल्मों को ना सराहें, देन probably I don't stand anywhere. मगर but I think I'm empowered by so many people who love me on many levels. I feel some people who haven't even seen my films, they love my personality, and some there are fans who love my acting are not okay with my personality. So there are so many levels of people and how they appreciate me. I'm really humbled. कंगना जी आपके सामने हाय आपके ठीक सामने हाय हाय कंगना जी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कंगना जी ने हमारी लाइफ की डाली काट कर रख दी है, हमारी ज़िंदगी परेशान कर के रख दी है.
तो ऐसे लोगों को कंगना मानती हैं कि वो मेंटल है या जजमेंटल है? वो वैसे लोग हैं, वो जो मैम कह रहे थे ना एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में है, वो वैसे लोग हैं। सो आई थिंक कुछ लोग जो हैं जिनको आई थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं, दूसरों को भी मेंटल, सो वो सब एक अलग पूरा ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का। वो सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट डेफिनेटली जजमेंटल तो वो नहीं है। आई थिंक समवेयर दे रिकग्नाइज माय स्पार्क एंड समवेयर दे नो। कोई मेरे दोस्त ही थे जो मुझे कह रहे थे, यार तुमको कितने लोग परेशान करते हैं। सो आई वाज टेलिंग देम कि अगर ये लोगों ने इतनों को टॉर्चर, अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की? तो सोचो अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करते। अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं। नेचुरली इज़ बिकॉज़ आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट। आपने बताया कि अब आप 30 की हो गई हैं, अब शायद आप शांत हो जाएँगी। तो 30 क्रॉस करते-करते कोई और भी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे आप एक्सपोज़ करना चाहेंगी? अ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज़ करती हूँ। आई थिंक वो थोड़ा ऐसा हँसी-मज़ाक में भी लोग खुद ही एक्सपोज़ हो जाते हैं। सो आई कीप इट वेरी लाइट। चाहे मैं देश के बारे में बात करूँ, मैं सारी कॉमन सेंस की बात करती हूँ। वो खुद ही एक्सपोज़ होते रहते हैं, सो आई आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग फॉर मी टू डू। मैं जैसे कहती हूँ अपने दुश्मनों के बारे में कि मतलब उनको मेरी क्या ज़रूरत है? वो खुद ही अपने खुद के काम में लगे पड़े हैं, इतनी बुरी तरह से खुद को एक्सपोज़ करने में। सो आई डोंट थिंक दे नीड मी। डायरेक्टर जी, आपसे एक सवाल है। डायरेक्टर जी, प्रकाश अरे जी, तेरे तीसरा सवाल चल रहा है यार, रुक जा। डायरेक्टर जी से एक सवाल ये है कि आप इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। आप इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये फ़िल्म आपने प्रॉपर तरीके से आपने डायरेक्ट की है या कंगना जी ने भी थोड़ी बहुत डायरेक्ट की है? First, I'd like to thank this team that I had to make such a wonderful film. So, to continue the question that he said, for me, the entry into Bollywood has been fantastic with the kind of support that I've gotten from my producers, my writers, my technical team, and most importantly, my cast. So, in which both Kangana and Rajkumar have been fantastic. Specific to your question, I thoroughly enjoyed directing Kangana. I come from theatre and I like my actors to ask me questions. I like us to have creative discussions, and I like us to arrive on something that we together collaboratively work on. Because I believe filmmaking is a collaborative process. लेकिन सर And जब मैंने आपका ये छीन लिया माइक, जब आप एक्शन कहने वाले थे और मैंने से एक्शन, तब आपने क्या किया? तब आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को? yeah, so for me, I thoroughly enjoyed working and taking her inputs, giving my inputs, and together made this a better film. And those inputs have come from everybody in the team. Yeah, like I said, she was wonderful and a thinking actor. Yeah, completely so. Because ultimately, telling a story is a personal expression. You know, some people will like your expression, some people may not like your expression. Your job is to be honest to what you do correctly. You know? And I'm confident that with this movie, a large audience will like our expression. कंगना, एक बार फिर आपने बेहतरीन अदाकारी दिखाई है फिल्म में। एज योर फिल्म टैगलाइन सेज, हैशटैग ट्रस्ट नो वन। आपका ट्रस्ट किसने तोड़ा है और अब अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए आप क्या करती हैं? दूसरा एक और सवाल, सुपर 30 भी जल्द रिलीज होने वाली है, उसके साथ आप सवाल में ही जवाब। क्लैश से कैसे इस फिल्म को बचाएंगे? नो, वी आर नॉट क्लैशिंग विद डेट अलग है भाई, हाँ। डेट टोटली अलग है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो चेंज हो गया. You're expecting a 2 week, okay, 2 week run. Basically, if it does well for 2 weeks, then when they meet you on the 26th clash. Yeah, then we will see what happens. About trust, yes, as a young woman or as a young man, you would go through a lot of experiences. From the age of 16,
जैसे आप अपने मम्मी पापा के घर से निकलते हैं, you feel कि ये तो बिल्कुल ही एकदम is unsettling. So you go through various experiences, and to keep the ability to continue to trust people is very healthy, and you will be finished without that ability. If you don't trust people, you don't have faith in life, if you live in constant insecurity of being betrayed or cheated or something going wrong, you're already finished. So to how to keep the ability to trust, to have faith, to be honest, and to be able to every day revive yourself is very important. I do a lot to keep that ability on a very high scale, not a mediocre scale. If as a kid, if I left my home without even having any security, you can imagine how high that ability of trust I had growing up. And I realized that that is the primary reason of my success. I keep that very high, whether I have to meditate or I have to, whatever it takes. I keep that. कह सकते हैं कि कंगना अब इतनी मैच्योर हो गई हैं कि अब उनका ट्रस्ट तोड़ने वाले डरते हैं? ऐसा नहीं है कि डरते हैं, but I definitely I I have a lot of faith in people. I don't get mind getting hurt, but I do not want to hurt anyone. It's okay to get hurt, but in the anticipation of getting hurt to hurt people is wrong. ऐसा नहीं है कि फ़िल्में मेरे हाथ से चली गई है, क्योंकि आई थिंक अधिकतर लोग जो हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही, जैसे जब प्रकाश सर मुझे मिले थे, या मैं अश्विनी मैम के साथ अभी काम कर रही हूँ, एंड देन आई हैव साइन 2 मोर फ़िल्म्स, 3 मोर फ़िल्म्स। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं देखा कि ये लोग प्रेजुडिस्ड हों, या आई थिंक दे आल्सो कम फ्रॉम, स्पेशली समबडी लाइक प्रकाश सर हू इज़ फ्रॉम अ फ़िल्म फैमिली। सो उनको पता चलता है कि हर एक का एक मीडिया क्रिएटेड, या लोगों का जो भी उनको सुविधा रहती है उस तरह की वो इमेज बनाते हैं, चाहे आपके कंपटीशन वाले हों या। सो मैंने कभी नहीं देखा कि प्रकाश सर कभी भी प्रेजुडिस्ड हो, या थ्रेटन्ड हो, या किसी तरह से उन्होंने मुझे किसी तरह की इवन 1 मिनट की भी कॉन्वर्सेशन हुई हो कि हम लाइक इस बारे में बात कर ले। सारा प्रोसेस इतना नॉर्मल था जितना कि मेरी पहली फ़िल्म का होगा, फ़िल्म लाइक गैंगस्टर जब मैंने की थी। एंड ऑल्सो जो भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लोगों के साथ में, मुझे जो सेक्सिस्ट लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, उन लोगों से मुझे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। बट आई डू नॉट थिंक कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जस्ट go through a film without causing friction. I do, but जब लोग कुछ ज़्यादा ही wrong होते हैं, तो I make sure I point that out. But with Prakash sir, he is a delight to work with, and the best thing about him is that he's a young mind, he's a fresh perspective, and he's somebody who's um, very urban in his approach to cinema. And like he said, so many people have contributed to this film, not just me, on the set also, because he's just so unassuming and so open to all interactions. All right, Kangna, we'll wrap up. Yeah, Whoa, 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 Kangna, whoa. just No, no, no. wanted to We've know, all sir, then one last question. no, no. We'll wrap up now. सारे लोग डबल क्वेश्चन हो गया यार, हो गया. कितने साउंड बाइट? 6 तो बन गया हेडलाइन ऑलरेडी. हो गया, डन. So we'll take a little. Yeah. Okay, one last, but somebody new. So one sec. Somebody new. No. Okay, yeah. This lady here, right? New. Right. Last question. Yeah, please. आई थिंक दैट इट्स वेरी हेल्दी कि अगर राइटर और डायरेक्टर जब किसी चीज़ को दो नज़रियों से देखते हैं और जब फिर एक सोल्यूशन पे अराइव करते हैं, तो इट्स दैट मच मोर रिचर एंड हेल्दियर। सो आई डोंट थिंक इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एट ऑल। इन फैक्ट राइटर और डायरेक्टर को क्रिएटिवली डिफर करना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओनली वन sort of a road that one needs to take. Okay, now we'll wrap. Yeah. Thanks, guys. We'll just photo. I'll just give the Viral, bits across. Sankal, please come. Suresh. Anybody else Kanik, want to talk, sir? Rang, please. One sec.
कंगना में इधर ही कंगना में I'm so glad I wore a coat because I knew how you would be dressed. So fantastic. You're looking gorgeous. You're looking fantastic. I'm going to call a few more people on stage and then we'll start a little bit of a chat. The gentleman who's put this all together, the director, please. Yeah. A gentleman who's now become very accustomed to making sure all his films come out. The producer, Mr. Shailesh Singh. Ladies and gentlemen, big round of applause. Last week and now here again, sir. And the lady, I have no idea how she thought this up. The writer, Kanika Dillo, ladies and gentlemen, a round of applause for her. See, like the enthusiasm. These people probably do this 3 times a day, you know, so the enthusiasm is a little muted, but here it wasn't, so congratulations, sir. I have to ask you, Kanika, first, how did you think of this? What were you doing thinking of this kind of a crazy, it's fantastic, and that's the best part of it, and you managed to still make a whole film out of it, writing-wise. Can you just tell me, before I ask the obvious candidates, how did you think of this? I just got bored being very sane, so I thought I'll write an insane story. Congratulations. A lot of directors from the South are now coming across, making big names for themselves. I can finally think that India has now become a unified film industry, at least on the face of it. Whether it actually has, we'll find out in a bit. But now that you see the creation up in front of you, what do you feel like? Are you happy? I'm very happy with what we've done and the journey so far. Spot in between because that lady is in Switzerland. Ekta Kapoor, we have to give a round of applause for her as well, who put this all together. And when I saw her tweet about the trailer last night, she said, "Love it, fantastic, I'm going to see it tomorrow." I was very excited that we're definitely going to see it tomorrow. So, Shailesh, you've had a brilliant run. I mean, you had Jabariya Jodi up and now you got this as well. How can you stay so calm all the time? There's a lot of money at stake here, you don't feel like ever stressed. When you have so much on stake, you need to be calm. This is your new mantra. It's like, you're a yoga person. Are you a yoga person at all? Not at all. Not at all. Tennis person. You're a tennis person. But now we have to come to you. It has written you in mind. So would you please? But I was not very keen on thrillers, and he would tell me, give it a chance and all of that. And I'm like, I Actually, we don't know. conned her. Yeah. So I asked her to read one of the scripts to just see how she writes. So I gave the script to read her. That's how I managed to get her to read the script. And when I heard it, I was completely blown away because it is so much more than just a thriller. Thriller is probably just one layer of it, but this film has so much to offer. And when I read it, and I felt so, judgmental हो के एक film लिखते हैं. No, it was such a beautiful, happy moment for us when, Kangana, usually actors take time to make up their mind and all that, but Kangana was so instinctive and so sure, and I think the first half itself, we knew that, she's doing it. She didn't take even a moment, so, she knows what she wants. And yeah, we've seen a lot of that. You do know exactly what you want, and it's fantastic. You haven't even the one that. क्योंकि आपके बारे में कहा गया है अरे कंगना वो पगली है ऐसी है कई आपके जवाब या जो भी विवादित बयान रहे हैं उसको लेकर तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं कि थोड़ा सा पहले लगा यार ये फिल्म मुझे ऑफर की जा रही है नहीं आई थिंक मेरी ज़िंदगी में काफ़ी एक फेज़ आया था जिसमें मुझे ये कह के काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है ये मेडिकेशन पे है तभी ऐसे क्लेम कर रही है एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था कि सो व्हाट जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है वो बहुत ज़्यादा होगी मेरी तरफ से कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी कहानी है क्योंकि अगर वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता 2016-17 का था जो उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इशू है कि एक लड़की को सब पगली पगली बुलाते रहते हैं उसकी और वो भी थोड़ा सा ऑफ है थोड़ा ऑफ बीट है तो ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फेज़ आया उसके करके मैंने बहुत रिलेट किया इस फिल्म से आई थिंक सो
मुझे एक्चुअली में ना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलिएशन लगती है। आई एम ओके अगर मेरे बारे में लोग क्या अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं, मेंटल सोचते हैं, वोला में सोचते हैं, या गैंगस्टर की मोल समझते हैं, या तन्नू समझते हैं, दत्तो समझते हैं, सो फॉर मी इट इज नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नॉर अ ह्यूमिलिएशन। आई मीन आई वुड आल्सो लाइक गंगा, मेरा सवाल आपसे है, कोलमैन ने अपनी जो बुक है कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर उसमें लिखा है कि मेंटल इलनेस कोई खराब चीज नहीं है, छुपाने की चीज नहीं है। यही बात दीपिका पादुकोण ने मंच पे आकर कहा कि मैम सर आर यू रियली वेरी सैटिस्फाइड विद दिस फिल्म? रियली हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसकी टाइटल बहुत ही मतलब खराब होती है। मेंटल हेल्थ केयर वाज नथिंग लाइक लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पता है हम तो जो है हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, हेलो 30 मेरा हो गया है, अब धीरे 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 इसके अंदर की आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, तो वो हो रहा है, आई कैन सी। हेलो कंगना जी, मेरा सवाल आपसे कि लाइक जो पिक्चर का ट्रेलर देखा उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना पागल बन के हमको पागल बना रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं कि आप दोनों सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं और गेड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मतलब जजमेंट मेरा सही निकल रहा है, जजमेंट क्या पता देखो किसका जजमेंट सही है। और असल जिंदगी में भी बोले कि आपने बताया कि 16-17 में लोग आपको पगली परेशान करने की तो सोचो, अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करते, अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं, नेचुरली इज बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट। आपने बताया कि अब आप 30 की हो गए, अब शायद आप शांत हो जाएंगी, तो 30 क्रॉस करते करते कोई और भी ऐसी पर्सनालिटी है जिसे आप एक्सपोज करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ, आई थिंक वो थोड़ा ऐसा हंसी मजाक में भी लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, सो आई कीप इट वेरी लाइट। चाहे मैं देश के बारे में बात करूँ, मैं सारी कॉमन सेंस की बात करती हूँ, वो खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग फॉर मी टू डू। मैं जैसे कहती हूँ अपने दुश्मनों के बारे में कि मतलब उनको मेरी क्या जरूरत है, वो खुद ही अपने खुद के काम में लगे पड़े हैं इतनी बुरी तरह से खुद को एक्सपोज करने में, सो आई डोंट थिंक दे नीड मी। आपसे एक सवाल है डायरेक्टर जी, प्रकाश जी। तेरे तीसरा सवाल चल रहा है। And I like my actors to ask me questions. I like us to have creative discussions, and I like us to arrive on something that we together collaboratively work on. Because I believe filmmaking is a collaborative process. लेकिन सर जब मैंने आपका ये छीन लिया माइक, जब आप एक्शन कहने वाले थे और मैंने से एक्शन, तब आपने क्या किया, तब आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को? Yeah, so and those inputs have come from everybody in the team. Yeah, like I said, she was wonderful and a thinking actor. सर आप साउथ से हैं और साउथ से एक फिल्म बनी रीमेक होकर कबीर सिंह। कबीर सिंह को मिक्स रिएक्शन मिले, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया उसका उसे, और बहुत सारे लोगों ने उसे नापसंद भी किया। स्क्रिप्ट के लेवल पे एज अ डायरेक्टर आप इस फिल्म के लिए तैयार हैं कि कुछ लोग उसे पसंद भी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे? Yeah, completely so. Because ultimately, telling a story is a personal expression. You know, some people will like your expression, some people may not like your expression. Your job is to be honest to what. किसी तरह की इवन 1 मिनट की भी कॉन्वर्सेशन हुई हो कि हम लाइक इस बारे में बात कर ले, सारा प्रोसेस इतना नॉर्मल था जितना कि मेरी पहली फिल्म का होगा, फिल्म लाइक गैंगस्टर जब मैंने की थी। एंड ऑल्सो जो भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लोगों के साथ में, मुझे जो सेक्सिस्ट लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, उन लोगों से मुझे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बट आई डू नॉट थिंक कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जस्ट go through a film without causing friction. I do, but जब लोग कुछ ज़्यादा ही wrong होते हैं, तो I make sure I point that out. But with Prakash sir, he is a delight to work with, and the best thing about him is that he's a young mind, he's a fresh perspective, and he's somebody who's who's very urban in his approach to cinema.
And like he said, so many people have contributed to this film, not just me, on the set also, because he's just so unassuming and so open to all interactions. All right, we'll wrap up. No, we've all. अभी तक ये लोग Rochika, the creative director of the film. One person missing right now. यार पूरा जाएगा लेके मैं कर उधर से शूट करना भाई सोलो